దిస్ ఇస్ శ్రీధర్ కడారి, సీనియర్ జర్నలిస్ట్, మేనేజింగ్ ఎడిటర్, జీ న్యూస్ తెలంగాణ. తెలంగాణ స్టేట్ ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ జాక్ సభ్యులందరూ ఇక్కడ మన దగ్గర ఉన్నారు. భారతదేశ రక్షణ కోసం త్రివిధ దళాల్లో పనిచేసి దేశ రక్షణ కోసం కృషి చేసి ఈరోజు రిటైర్డ్ అయిన తర్వాత ఈ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో భారతదేశంలో యువత త్రివిధ దళాల్లో చేరి ఈ భారతదేశం కోసం కృషి చేయాలని వీళ్ళు అనేక కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు. అదేవిధంగా త్రివిధ దళాల్లో పనిచేసి రిటైర్డ్ అయిన సైనిక కుటుంబాల సంక్షేమం కోసం అద్భుతంగా పనిచేస్తున్నారు. వీళ్ళు త్రివిధ దళాల్లో పనిచేసి ఈ దేశానికి సేవ చేసిన ఆనందం ఎట్లా ఉంది అనేది ఈ త్రివిధ దళాల్లో పనిచేసిన సైనికులను అధికారులను అడిగి ఇప్పుడు మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం. రావుల రంగారెడ్డి అండి, సిద్దిపేట జిల్లా, పూర్వం ఉమ్మడి జిల్లా కరీంనగర్, ఇప్పుడు సిద్దిపేట జిల్లా దేవకపల్లి గ్రామం, బెజ్జంకి మండలం. ఆర్మీ సర్వీస్ కార్ప్స్లో నేను 1978లో జాయిన్ అయ్యాను. 1998లో డిశ్చార్జ్ అయ్యి ఇంటికి వచ్చాను. 20 సంవత్సరాలు సర్వీస్ చేసి తెలంగాణ స్టేట్ ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ పునాది వేశాను. దానికి బ్రిగేడియర్ శ్రీరాములు గారు, ఇద్దరు ఆర్మీ ఆఫీసర్స్, ఎయిర్ ఫోర్స్ ఆఫీసర్స్ వైఫ్స్ సహకరించారు. మిగతా మా మిత్రులు సహకరించారు. మేము ఒక 7గురం కలిసి మొదలు ఆర్గనైజేషన్ రేజ్ చేశాం. రేజ్ చేసేసి జిల్లాలకు సమాచారం అందించాము. అప్పుడు ఒక్కొక్క అసోసియేషన్ జాయిన్ అవ్వకుండా వచ్చింది. ఈ రోజు వరకు మా దగ్గర 8 అసోసియేషన్లు జాయిన్ అయినాయి. బిగ్ వే మన వాయిస్ని ఇంకా పెద్దగా వినిపించాలని జై జవాన్ ఛానల్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అనే సంస్థను కూడా స్థాపించాను. ఇంకొక 6 నెలలు అయితే అది కూడా మీ ముందుకు వస్తుంది. సో మీరు మీ వంతు బాధ్యత నిర్వహించండి. మీ హక్కు తీసుకొచ్చే బాధ్యత మా జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీది. నా పేరు కృషిరత్న జీకే రావు అండి. నేను భారతీయ సైనికుడిగా 19 సంవత్సరముల సేవ చేసిన అనంతరము రిటైర్డ్ అయిన తర్వాత గత 21 సంవత్సరములుగా నేను సమాజ సేవ చేస్తున్నాను. ఈ భారతదేశ సైనికులందరూ కూడా కలిసి సమైక్య సంఘంగా మారాలని, మన ఐక్యత భారతదేశమంతా ఒక ఉదాహరణగా చూడాలని మన సైనికులందరూ కలిసి ఈ రోజున ప్రమాణం చేస్తామని చెప్పేసి అందరం ముందుకొచ్చాము. కాబట్టి దయచేసి ప్రతి సైనికుడు కూడా నేను ఆనాడు కార్గిల్ యుద్ధంలో ఎలా ఉన్నానో అదేవిధంగా నా యొక్క సహోదరుల, అదేవిధంగా తల్లుల, చెల్లెళ్ళ, అన్నదమ్ముల సమైక్యతను కోరుతూ నేను ఈ దేశ సైనికులందరికీ కూడా నేను ఒక సేవకుడుగానే ఉండి నా జీవితాన్ని ముగించాలని కోరుకుంటూ ఈ శపథం మీ ముందు నేను చేస్తున్నాను. జై హింద్. నా పేరు దుర్గా గుణగంటి, వనపర్తి డిస్ట్రిక్ట్ ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ అసోసియేషన్ నుంచి వచ్చాను. నేను 2003లో ఇండియన్ ఆర్మీలో జాయిన్ అయ్యాను. 17 సంవత్సరాలు కంప్లీట్ చేసి లాస్ట్ ఇయర్ రిటైర్మెంట్ అయ్యాను. అయితే ఇక్కడ దేశం కోసం ఇన్ని సంవత్సరాలు సేవ చేసినందుకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. सब लोगों को नमस्कार. मेरा नाम शेख जिलानी बादशाह, सुबेदार मेजर हांड्री लेफ्टिनेंट. मैं 1995 में भर्ती हुआ डिफेंस में, कोर ऑफ इंजीनियर्स में एज ए स्टोर कीपर टेक्निकल क्लर्क्स. उसके बाद 10 साल सर्विस करने के बाद डिप्लोमा करके मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में ज्वाइन किया. वहाँ से तीनों फोर्सेस, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में मेरा सर्विसेज एज ए जूनियर इंजीनियर सिविल काम करके लेटेस्ट 31 अक्टूबर 2020 में रिटायर हुआ. आर्मी में सेवा करके बहुत अच्छा लगा. टोटल 25 ईयर सर्विस किया मैंने. मेरे को बहुत अच्छा लगा और सारा नौजवानों को मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ, आप भी बढ़ चढ़ करके आर्मी में हिस्सा ले, देश को रक्षा करना है. जय हिंद. प्यारे जवानों जो सेवा में हैं और मेरे प्यारे जवानों जो सेवानिवृत्त हो गए, उन सबको मैं तहे दिल से जय हिंद कहता हूं और मैं आभार कहता हूं. मेरा नाम मोहम्मद नज़ीर जान है. मैंने इंडियन आर्मी EME कोर में 22 साल सर्विस करके 2010 में रिटायर हुआ. मैं इंडियन आर्मी में 22 साल किया और हर जगह पे किया, हर काउंटर इंसर्जेंसी में काम किया और कारगिल वार में भी अटेंड किया. मुझे बहुत ही आनंद मिला और मैं इतना खुश नसीब हूँ कि मैं अपने देश के लिए अपने 22 साल का योगदान दिया. मैं यूथ को यही बोलना चाहता हूँ कि जो देश की सेवा में मतलब एक बार देश जो कहना ये चाहता हूँ कि यूनिफॉर्म पर पहन के एक बार देश की सेवा करके देखो. उसके अंदर जो आनंद मिलता है वो किसी में नहीं मिलता. क्योंकि 130 करोड़ की आबादी जो अपनी जितनी जनता है उसके अंदर कई लोगों का ऐसा चांस मिलता है सिर्फ अपने सर के ऊपर सिर्फ अपना जो चिन्ह, भारत का चिन्ह जो अशोक स्तंभ पहनने का चांस मिलता है वो उसी को मिलता है जो यूनिफॉर्म पहनता है. मैं ये कहता हूँ कि उस अशोक स्तंभ को चिन्ह को अपने माथे पे लगाने की कोशिश करो और उसके लिए देश के लिए आगे बढ़ो. मेरा नाम दारा मनोहरम
और मैं 1982 में जो है आर्मी में ज्वाइन किया और देन 2008 में मैं रिटायर्ड हुआ एज ए 26 साल सर्विस करके। तो सर्विस में काफ़ी अच्छा लगा और हम लोग वेल सेटल भी है। मेरा नाम महादेवन है। मैं कोर ऑफ सिग्नल में 1959 में बॉयज़ में भर्ती हुआ और 1968 में मैं रिजर्व में आ गया। तो एवरी 2 इयर्स 40 डेज ट्रेनिंग के लिए जाया करता था। 76 में पेंशनर हुआ। तो उससे पहले 62 बार मैं देखा और 65 बार मैं देखा। रिजर्व में रहने के वजह से 71 बार में पार्टिसिपेट लिया और मैं अबूर सेक्टर फसल का सेक्टर में नौकरी करके फिर 1 साल रिटायर होके NFC न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स में ज्वाइन होके फिर 76 पेंशनर होके मैं रिटायर हुआ। और जो रंगारेड्डी साहब ने जॉइंट एक्शन कमेटी जो बनाया उसमें मैं वाइस प्रेसिडेंट काम कर रहा हूँ और मेरे से जो हो सका सो कोऑपरेशन मैं उनको दे रहा हूँ और सब एक्स सर्विसमैन के लिए मैं वॉलंटियरली काम करने के लिए तैयार है। इंडियन आर्मी तो बचपन में गया, मैं बॉयज़ में बहुत एंजॉय करा। ठीक है, इंडियन आर्मी तो एक फेमस है। अभी वर्ल्ड में बोलना बोलो तो हम लोग सेकंड प्लेस में, चाइना के बाद हम ही लोग हैं, लेकिन स्ट्रांग है चाइना, सभी बोल सकते हैं। ये वार का मोमेंट नहीं है, मैं वार के बारे में बात करें तो फिर भी इंडियन आर्मी इज़ द नाइस इन आवर कंट्री। ऑनरेरी फ्लाइंग ऑफिसर इंडियन एयरफोर्स में 38 ईयर्स मैंने नौकरी करके रिटायर किया 2009 में। और जब से रिटायर्ड होने के बाद मैं अपने एसोसिएशन में करीमनगर, वारंगल, हैदराबाद हर जगह मैं अपने भाइयों के साथ मिलते रहा। उसके बाद में दिल में ये दिलचस्पी आ गई कि अपने लोगों के साथ कुछ मिलके उनके वेलफेयर के काम में हाथ बढ़ाएंगे बोल के फिर मैं रंगारेड्डी के साथ मिला करीमनगर में। एक्स सर्विसमैन के वीर नारी उनके मकान के लिए, इस जगह के लिए वो लड़ते रहे। हमारे सेक्रेटरी, उनके साथ में साझेदारी दिया तकरीबन 10 साल। मेजर नंद कुमार, रिटायर्ड, 32 साल नौकरी करके 32 साल 7 दिन नौकरी करके मैं आर्मी मेडिकल कोर्स से रिटायरमेंट ले चुका हूँ। मुझे सबसे खुशी हुई है कि मैं AMC का अंदर मैं आर्मेड फोर्स का मैं एक मेंबर था। मुझे वो सबसे बड़ी खुशी है। और दूसरे, मुझे इस देश ने मुझे क्या दिया, इस देश ने मुझे इज्जत दिया। मुझे सबसे ये है कि जो इंडिया का ताज पहनने का मुझे मौका दिया जो किसी को नहीं मिलती है। मेरा नाम हैदर अली है। मैं 26 इयर्स अपना इंडियन आर्मी कोर ऑफ EME में ACP नायब सूबेदार से मैं रिटायर्ड हुआ। मैं बहुत अपने आप को फ़ख्र महसूस करता था जब मैं अपने शरीर पे अपना आर्मी का वर्दी यूनिफॉर्म पहनता था। और मैं आर्मी में 26 इयर्स जितने भी मेरे को चैलेंज मिला, मैं ब्लैक हेड कमांडो भी हूँ। 4 इयर्स मैंने NSG में अपना कार्यरत किया। 3 बार मैंने रिपब्लिक डे परेड भी पार्टिसिपेट किया दिल्ली में। तो मैं अपने अंदर एक गर्व महसूस करता था कि मैं अपने भारत माता के लिए मैंने 26 साल अपना इम्पोर्टेंट जीवन उनको दिया, अपने भारत माता को। सुबेदार मेजर हानरे कैप्टन रिटायर्ड शेख करीमुल्ला। मैं 32 इयर्स इंडियन आर्मी कोर ऑफ इंजीनियर्स में जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल से काम करके 31 अक्टूबर 2020 को मैं तवांग अरुणाचल प्रदेश रिटायर हुआ। मैं बहुत खुशकिस्मत और बहुत फ़ख्र करता हूँ इस बात पे। मैं इंडियन आर्मी में मेरा पूरा जवानी और 32 साल बहुत लंबा समय होता है, इसको मैं बहुत बाखूबी मेरा जो ड्यूटी मुझे मिला था जो भी है, मैं ऐसे पानी बिजली का डिपार्टमेंट से मैं बिलोंग करता हूँ। पहले अपना ड्यूटी को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया, घर को नेक्स्ट प्रायोरिटी दिया, इसी तरीके से काम किया और इसी तरीके से हमने रिटायर भी हुआ। मेरा नाम शेख गौसमुद्दीन है। फ़ौज में 30 साल करके एज ए सूबेदार जैसे रिटायर्ड हो गया। फ़ौज में सर्विस करना सबके लिए गर्व की बात है, ये तो बात है।
और फ़ौज का सर्विस हमें करते समय बहुत ही एक्टिव से रहते, बहुत ही डिसिप्लिन से रहते हैं, बहुत काम सक्सेस करके भी दिखाते। समीउल्लाह खान है मेरा नाम। मैं यहाँ के इंटीरियर का काम कर रहा हूँ और सिविल इंजीनियरिंग का जो कर रहा हूँ। जो भी एक सर्विसमैन वाले जो मेरे को बुला के जो ये काम जो बोल रहे हैं मेरे को, मैं उनको ये पूरे कामों में मैं साथ दूंगा। मैं उनको ये जो कामों में जो भी जो गरीबों को जो फ़ायदा होने वाला है उनके तरफ से भी मैं खुशी पाऊँगा। और सब जने को मेरा जो एक सर्विसमैन वाले को सब जने को मेरा नमस्कार। सैयद नामतुल्लाह है, मेरी 31 ईयर्स एज है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कड़पा से। अभी मेरे जीजा के साथ आके हूँ सर ये ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए, उनका साथ देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। ये तेलंगाना एक्स सर्विसमैन ऑर्गेनाइजेशन में उनका मेरे को लक्ष्य पसंद आया सर। उनको जो सेवा, उनका जो काम करना चाहते हैं, जो एक रास्ते में चलना चाहते हैं, उनके सपोर्ट करने के लिए मैं उनका साथ देना चाहता हूँ।